गुड मॉर्निंग आप सभी को किरोशा एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इसके पहले दो सेशंस कवर किए हैं जिनमें हमने डोमेन वन एंड डोमेन टू, जो डोमेन वन में जो चार पोर्शन डिवाइड हम दो हमने कवर किया है। आज हम लोग उसी डोमेन में पार्ट सेकेंड हम कवर करेंगे। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स जो आपके क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो और आपके इंग्लिश और हिंदी जो कंप्रहेंशन है वो हम कवर करेंगे। During the session, if you have any doubt, you can leave your queries in a comment section. As well as same time, you can call to Kirosha Academy mobile number. One more thing, this is the all the questions which are going to explain you is a very explanatory in nature. Don't expect कि you will get the same question in the exam, but you at least you can get an idea कि such type of question these days coming in the examination of aims, or how can you deal with them. Okay, so I'm going to start now. Welcome again. I welcome you all. शुरू करते हैं. So here we already explained this one. This topic we already covered. In this general intelligence we already covered in first. Awareness and knowledge of computer I already covered. Today we are going to deal with quantitative aptitude, that is your mathematics, and English and Hindi comparison of the 10 mark. Remember, you will get 10 questions for the mathematics and 5 for the English and 5 for the Hindi. Okay. As you all know, I think the nursing students are so much intelligent in Hindi. So my Hindi के कम questions I have attended very few questions here, but at least I'll give you some idea कि how to deal with. Okay. So we can start with the first question. We'll go with this mathematical question. This is a pie chart. Hope this is visible to you all. If you notice, in such questions, you need to understand two things. तो यहाँ पे आपको एक चीज समझने की है कि ये जो इंटायर जो आपका पाई चार्ट है ये 360 रहेगा, 360 डिग्री. नाउ द क्वेश्चन इज पाई चार्ट इज गिवन expenditure occurs in crore, इस करोड़ में like cricket on 100 crore, kabaddi in 25, basketball on 20 and 70 for the football and 25 for the tennis. Now the question is कि count the expenditure of basketball, ठीक है, इन गिवन चार्ट. तो यहाँ पे आप देख लो कि एग्जैक्टली यहाँ पे 100 है. अब इन सबको आप जोड़ लो. 3 से आपको 100 मान लो कि है, आपको 360 डिग्री निकालना है तो आप इन सबको जोड़ लो. आपका 100, 25, 25, आपका ये 20 एंड 70, you'll get the value of 240. ओके, जोड़ने के बाद 240 वैल्यू आ गया. अब आपका क्या है कि 240 इस आप अब इसको पूरे 360 डिग्री को आप 100% मान लो. दिस इज 100%. तो 360 आपका 360 इज इक्वल टू 100%. आप ऐसा मान सकते हैं. नाउ 240 करोड़ टोटल खर्च किया उन्होंने. तो अभी 240 करोड़ क्या हो गया, इस 240 करोड़ क्या हो गया, 100%. तो सिंपल, इफ द 240 करोड़, यहाँ पे एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ. नाउ जब ये 240 हुआ है, 240 is 100%, तो 1 divided by 240 into 100 into जो आपका बास्केटबॉल, सॉरी यहाँ पे बास्केटबॉल का आपसे पूछा है तो आप यहाँ पे into 20, you will get your value. The same time if they ask give the about the cricket, you need to multiply with this. 2-3 things you need to remember. Or this is first, this entire circle will be 360 degree. Another thing, this is in crores. He can also ask, tell us about the expenditure between the basketball and tennis. तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंस निकालना है कि कितना डिफरेंस वहां पे है. सो सिंपल, आपने इसका निकाला 8.33% आया, परसेंटेज डिफरेंस पूछेगा, फिर आप इसी तरीके से आप टेनिस का निकाल दो और उसका डिफरेंस निकाल दो. तो यहाँ पे 2-3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, बट वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, दिस बेसिक्स विल बी सेम ओनली. 360 डिग्री रहेगा, 360 को आप 100% काउंट करेंगे और फिर वहां पे यू विल गेट वैल्यू ऑफ परसेंटेज.
आपसे पूछा कि गिव द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो सो आप दोनों का माइनस कर देंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू। इफ यू पीपल नीड इट, आई विल गिव मोर एक्सप्लेनेशन in my other class, in my next lecture. Thank you so much. आगे बढ़ते हैं next. Now this is again same kind of question. You just need to focus. It's so simple. You just need to focus. If you see what they have mentioned, again this is the circle. It's 20, 30, 50, and this is 100%. Now 100% is again 360. What they have asked, the first question, if the total of the 1200 kg of fruit were sold a day, calculate the amount of banana is sold. I told you in my last lecture, again this is 100%. Now total is like a total of 1200. Now the 100% is 1200. Again, so simple. If the 1200 is 100%, again the 12 into 30% कितना हो? You'll get your value. तो आपको बनाने का वैल्यू कहीं कहीं पे आपको आ जाएगा। इट्स सिंपल, ठीक है। आपको बस अगर आपसे वो पूछे कि गिव द वैल्यू ऑफ ऑरेंज, देन अगेन यू कैन पुट डायरेक्ट, इसने पूछा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ ग्रेप्स एंड ऑरेंज। ग्रेप्स का वैल्यू आप यहाँ देख लो, ग्रेप्स का वैल्यू है 10% और यहाँ पे ऑरेंज का वैल्यू 15%। आप दोनों का वैल्यू निकाल के और आप माइनस कर दो तो यू विल गेट योर डेटा। सिंपल। आपको आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन एज असाइनमेंट 2। एक बार आप प्लीज से सॉल्व कीजिएगा एंड लीव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई विल अगेन टेक दैट योर क्वेरीज इन द नेक्स्ट सेशन। यस। Now again there is no simple question. Come to the next question. The a boat covered 64, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बोट है, it's covered 64 किलोमीटर in 8 hours। जब वो नदी का बहाव भी इधर, जब वो इधर जाती है, और अगेन जब वो नदी के बहाव की तरफ जाती है, मतलब ये बहाव के विरुद्ध जा रही है और बहाव के साथ जा रही है, लेकिन जब वापस ट्रिप में वापस आएगी यहाँ पे तो 64 किलोमीटर कवर करती है वो 4 घंटे में। सिंपल, जैसे कि नदी का बहाव जिस तरफ है, जिस दिशा में है, उस दिशा में जब बोट जाती है तो वो थोड़ा स्पीड से चलती है, जल्दी कवर करती है। ये आप लॉजिक ऐसे समझ सकते हैं कि जब बाइक चलाते हैं और अगर हवा मान लो पीछे से आ रही है तो वो आपका सहयोग करेगी, दैट सपोर्ट यू टू गो फास्टर। बट अगेन अगर आपकी हवा सामने से आ रही है तो वो एक वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी, आपको ज्यादा, यू नीड टू रिक्वायर मोर फोर्स, तो मे बी यहाँ पे स्पीड वहां पे कम है। तो सिंपल, इस लॉजिक में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको उसका एक स्टिल वाटर में नॉर्मली उसका कितना होगा आपको वो निकालना है। इसके लिए सिंपल लॉजिक है, जैसे कि ये है, अब आपको इसमें फॉर्मूला आपको याद ही है, जो आपका किलोमीटर से उसमें टाइम आप डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 8। अगेन यहाँ पे 4 पूछा है, 64 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आपका 8 आ गया, यहाँ पे आपका you will get the value of, यहाँ पे आप will get 16। okay, so now you have a 8 का स्पीड और 16 का स्पीड। they ask you about the speed of, दोनों का स्पीड मिला के कितना होगा। तो इसको सिंपल, आप दोनों को जोड़ दो 24 एंड देन 2 का स्पीड है तो इसका आप एवरेज ले लो, will get the value of। अगेन दो चीज आपको समझनी है कि यहाँ पे उसने स्टिल वाटर का पूछा है, एवरेज पूछा है, दोनों को जोड़ के और आप अपना एवरेज निकाल सकते हैं। ओके, यू स्टार्टेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक रेशियो वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। देखिए इसमें लिखा है कि 3:17 इज व्हाट। अगेन सॉरी, मैं इसको फिलहाल न्यू फॉर द बोर्ड, तो यहाँ पे लिखा है 3:17। इस क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि 3:17 को इन व्हाट अदर फॉर्म वी कैन राइट, या 3:17 का इक्विवेलेंट वैल्यू कौन सा है। जैसे ये रेशियो है यहाँ पे, तो 3 का रेशियो 7, वो एक इन दोनों का डिफरेंस है, ये कहीं ना कहीं पे मेंटेन रहना। रेशियो का मतलब ये रहता है कि जैसे कि
100 में 100% में से 50%, तो वहां का 50% जो 100 करेगा वो रेशियो रहेगा, 50-100 रेशियो रहेगा। तो यहाँ पे आपको बस ये रखना है कि इन दोनों का डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखो अब मैं इसको यहां से 2 से अगर मैं इंटू कर दूं, आई गेट 6। मैं 2 से ही इसे इधर भी मैं 2 से ही गुणा करूं, आई गेट, इनका जो डिफरेंस है दिस इज वैल्यू के अकॉर्डिंग वो सेम हो गया, ठीक है। अगेन मैं इसको मान लो मैं 3 से गुणा करूं, मतलब इसको मैं 3 से गुणा करूं, आई विल गेट 9, आई विल गेट 20। मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, 12, 28। अगेन ये मैंने 5 से गुणा करके रखा है और 6 से गुणा करके रखा है। मतलब 3:17 को these are the other ways available in which you can write them, or they are equivalent to 3:17. So this was the question in the AIMS Bhubaneswar. तो hope ये आपको क्लियर हुआ होगा। Again you have question, you can ask me in next session. Come to the next. This is so simple. ये यहाँ पे आपको क्यूबॉइड एरिया के बारे में पूछा है। क्यूबॉइड एरिया का टोटल आपको एरिया का वो निकालना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं, बट फिर भी इसका जो फॉर्मूला है ये लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ हाइट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको 2 कर देना है। आप अगेन देख लो, आप यहाँ पे यू कैन जो 24 है, यहाँ पे एल की जगह 24 इंटू आप 16 लिख दो, प्लस 16 इंटू 8 कर दो, अगेन 24 इंटू 8 कर दो। मैंने कुछ ही नहीं किया, यहाँ पे लेंथ है, मैंने ये वैल्यू लिखा है वर्ड्स में, फिर वैल्यू लिखा, फिर हाइट में वो वैल्यू लिखा, ठीक है। और तीनों को जब आप जोड़ोगे और उसके बाद में आगे में इसका 2 है फॉर्मूला, 2, यू विल गेट योर वैल्यू। फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना है, बस कोशिश इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना। यू कैन नॉट मल्टीप्लाई देम डायरेक्टली, कैन नॉट मल्टीप्लाई, तो उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना। दिस इज द फॉर्मूला। इसमें आपको लेंथ को पहले आप विड्थ से गुणा करोगे, विड्थ को हाइट से, और फिर लेंथ को हाइट से, तीनों को एक दूसरे गुणा करना है। इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बिकॉज क्यूबॉइड का जो है उसके क्यूबॉइड का जो ये फॉर्मूला है सरफेस एरिया, वो आप इससे आप निकाल सकते हो। विल नॉट गो इनटू डीप। आगे बढ़ते इसका वन वी कैन एक्सपेक्टिंग अ प्रोबेबल क्वेश्चन देयर इन द CRE और इन द नेक्स्ट SNO एग्जामिनेशन। कम टू नेक्स्ट, सिंपल। अभी आप इंग्लिश का यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और देखते हैं कि सर दिस क्वेश्चन इज सो लॉन्ग है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसको पढ़ने में ही टाइम जाएगा। एग्जैक्टली वैसा कुछ नहीं है, आपको बस थोड़ी सी चीजें समझने की है। हमेशा याद रहे, आपने बचपन में ना आपने बचपन में बहुत सारे पैराग्राफ पढ़े होंगे या बहुत सारे पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कहां से शुरू करते हैं? वी स्टार्टेड विद प्रस्ताव। अगर आपने हिंदी में पढ़ा तो प्रस्तावना या भूमिका लिखते हैं, उसके बाद में उस टॉपिक के बारे में लिखेंगे, लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हो या उसको सारांश बोलते हैं, सारांश लिखोगे, और इसके अलावा लास्ट में पीछे में लिखोगे मोरल ऑफ द स्टोरी या विषय उसका क्या रहा। ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस में we can use the same logic. Now let me explain you how. मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं, तो इस मे बी इज क्लियर टू यू। In the yesterday lecture few people have complained कि these things are not clear to us. Okay, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक लॉजिकल ऑर्डर बनाना है, ठीक है। लॉजिकल ऑर्डर मींस, लेट मी एक्सप्लेन यू वन सिनेरियो। You get up in the morning, you get to washroom, then you come back, then you get ready with your outfits, you take your bike or your car, you went to your hospital duty by 8, you take handover, then you start doing your procedures, whatever the assignment is done. If some patient is for the OT, you complete entire checklist, and then you send the patient for the OT. Then again after once your shift is about to over, your reliever will come and will reliever take the handover. This is the entire process. ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड डायरेक्टली रीच टू द हॉस्पिटल, यू कैन नॉट। हाँ, आपको पहले जो भी चीजें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और यू विदाउट टेकिंग हैंडओवर यू स्टार्ट सेंडिंग अ पेशेंट टू द OT, अगेन यू कैन नॉट।
तो वही लॉजिक हम यहाँ पे, दैट वाज द जनरलाइज्ड एग्जांपल फॉर द लॉजिक्स। यहाँ पे दूसरे लॉजिक्स यूज करने शुरू करते हैं। Leaving school or entering the Air Force is an existing milestone, but it also required a great deal of independence, decision making, and risk taking. Once you pass out from your medical school or your nursing school, what you do, you start practicing somewhere. आपका internship होता है ना, वैसा ही तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि leaving school, entering a workforce. Workforce मतलब going for a job or getting a job. ठीक है, यहाँ पे जॉब एज अ माइलस्टोन इट मींस अ चैलेंज, ठीक है, रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ इंडिपेंडेंस। वंस यू स्टार्ट वर्किंग यू आर रिक्वायर मोर इंडिपेंडेंस, और वहां पे आपको इंडिपेंडेंट काम करना पड़ता है। यू विल नॉट गेट योर ट्यूटर्स और योर असिस्टेंट प्रोफेसर कम एंड हेल्प यू विद द प्रोसीजर्स, आपको इंडिपेंडेंट करना है। यहाँ क्या बताना पा रहा है, एंड द रिस्क टेकिंग। अब इसके, ये पहला सेंटेंस हो गया, इसके साथ में बाकी सेंटेंस कौन सा मैच हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, सेकंड सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, एक को छोड़ देते हैं। Okay, one of the biggest danger to watch of the having a unrealistic expectations. One of the मतलब इसके पहले they have explained something else. तो यहाँ से ये सेंटेंस शुरू नहीं होगा, one of the से शुरू नहीं हो सकता सेंटेंस कभी भी, क्योंकि इसके पहले one of the मतलब he explained something now, ये एक वन बताया, इसके पहले भी उसने कुछ बताया था, ऐसे शुरू नहीं होगा। अगेन सेंटेंस कैन नॉट स्टार्ट विद मैनी, यहाँ पे सेंटेंस ओवर या डॉट आपने देखा है, सेंटेंस मैनी से शुरू कभी नहीं होगा। मैनी मतलब अनेकों, मतलब इसके पहले भी कुछ था, तो यहां से आप शुरू नहीं कर सकते। नाउ कम टू नेक्स्ट, यहां पे देखो हाउएवर। अगेन हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, पर, या हो सकता है। हाउएवर मतलब हालांकि या कहा जा सकता है, ठीक है। तो हाउएवर आप अगेन यू कैन नॉट स्टार्ट द सेंटेंस, तो यू विल गेट ओनली वन चॉइस। These necessary steps are vital prepare for the realities of working, but essential to be cautious and watch for the potential pitfalls. Okay, तो यहां से these से शुरू करोगे। Now come to next B, one of the मतलब यहाँ पे इसने एक लाइन बताई यहाँ पे pitfalls, उसके बाद में इसके बताया कि one of the biggest danger, इसके watch out के बारे में, unrealistic expectation के बारे में बताया, our expectation is unrealistic। then comes second many, जब यहाँ पे इसने वन बताया, टू बताया, तो यहाँ पे आस्क अबाउट द मेनी ऑफ वर्कर्स बिलीव, और लास्ट में हाउएवर उन्होंने सारी चीजें बताई कि ओनली द पासपोर्ट ऑफ गेटिंग जॉब, और उस चीज के लिए नहीं होता। लास्ट में उसने जो भी छूट गया, मतलब जो भी इसके जो ड्रॉबैक्स हैं या पॉजिटिव पॉइंट्स किसी भी पैराग्राफ के, उसने लास्ट वाले सेंटेंस में एक्सप्लेन किया। रिमेंबर टू थ्री की पॉइंट्स, यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस विद हाउएवर। अगेन देयर इज अ मेनी व्यूज और वन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दीज, दोज, दैट, द, इट, दिस, यहां से सेंटेंस, अधिकतर सेंटेंस यहां से शुरू होते हैं। you need to take this as a key point. Come to the next. Again there is a question, ठीक है। तो यहाँ पे इजिप्शियन हाइलोग्राफिक्स के बारे में, ये हाइरोग्लिफिक्स के बारे में पूछा है। हाइलोग्राफी मतलब होता है जो इजिप्टियन दीवार पे जो पेंटिंग्स बनाते थे, कुछ ऐसी ही पेंटिंग बनती थी उनकी, जो भी इनकी पेंटिंग्स बनती थी, ठीक है, जैसे कि डॉग बनाया, कैट बनाया, वो जो इनकी पेंटिंग्स रहती थी उनको हाइलोग्राफिक्स कहते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, तो इट्स सो सिंपल। आप में इसको क्या करना है, देखिए कि पहले वो आपको इन दिस दे गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट इट इज, पहले फर्स्ट दे गिव इंट्रोडक्शन, देन दे गो फॉर सम अदर एक्सप्लेनेशंस, देन दे study about the relativity of the both, they find out the relativity in the both sentence which are was given, और at last this one आएगा, ऐसा करके at last में वो explain करेंगे what exactly it is। भाई जैसे कि वो ग्रेट है बुरा, आपने पूरी कहानी सुना दी, उसके कछुआ खरगोश की कहानी सुना दी, लास्ट में कौन जीता या कैसा रहा सब कुछ, वो एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जांपल इज यू राइटिंग अ रिपोर्ट इन अ हॉस्पिटल, हाउ यू राइटिंग अ रिपोर्ट, यू फिनिश्ड एवरीथिंग की, लाइक आप केयर प्लान्स बनाती, यू मेड केयर प्लान फॉर द हॉस्पिटल, तो मतलब फॉर द पेशेंट, सो हाउ यू राइट वाइटल साइंस एवरीथिंग, यू डेटा एंड एवरीथिंग, एट द लास्ट मोमेंट व्हाट यू डिड, you made the about the evolution or the summarization of your care plan और conclusion, तो वो सबके लास्ट में आएगा। दिस इज यू कैन समथिंग यू कैन डील विद। अगेन यहाँ पे इन्होंने डी से शुरू किया है, डी इज द फर्स्ट वर्ड, डी से शुरू किया है। आई टोल्ड यू यहाँ पे द कनेक्शन बिटवीन, दो चीजों के बारे में बोला यहाँ पे। उसके बाद में इन्होंने इट इज अ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे देखो बिटवीन, डिफाइन, यहाँ पे दो चीजों का बोला और यहाँ पे कॉम्बिनेशन वर्ड किया। कॉम्बिनेशन हमेशा याद रखिए, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन टू थिंग्स इज अ कॉम्बिनेशन, ये आपको बात हमेशा याद रखनी है।
और अगेन यहाँ पे ए लिखा है ग्रेट लिटरेचर, वहां पे फाइनल कंक्लूजन किया उन्होंने कि अनडाउटली मैच्योरिंग इफेक्ट ऑन आवर इमोशनल नेचर। ठीक है, लास्ट में उसने कंक्लूजन दिया है, ऑलवेज रिमेंबर इफ समथिंग इज कमिंग, सम सेंटेंस इज रिलेटेड टू द कंक्लूजन, ऑलवेज रिमेंबर वो लास्ट में ही दिया जाएगा। ठीक है, we can come to the next video. Next this is choose the one word substitute. Let me announce you one thing. Once I completed this lecture, I'll upload few of the most high-yield questions or high-yield topics there with this PPT. So you can do one with this video from the description link. You can download that file और उसको पढ़ के जाइएगा, एटलीस्ट यू कैन गेट आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए कुछ चीजें रख रहा हूँ। शुरू कर, देखो यहाँ पे लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ढूंढना है टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट पर्सन इन मेमोरीज। मेमोरीज हम कहते हैं कि किसी को याद करना। आपने सुना नहीं कि 2 अक्टूबर के दिन हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमेमोरेट। ठीक है, उसको कॉमेमोरेट करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग शहीदों को याद करते हैं। ठीक है, तो उसको कॉमेमोरेट करना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट पर्सन, तो जब यहाँ पे ग्रेट पर्सन यूज किया है तो शेम आएगा नहीं, बिकॉज शेम का मतलब होता है शर्मिंदा होना या लो फील करना। ओडियम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आएगा नहीं, क्योंकि ओडियम का मतलब होता है हार्ट रेट, वाइड स्प्रेड। मतलब किसी की बुराई सब जगह बहुत जगह फैली हो। ठीक है, इसके अलावा डिसग्रेस, डिसग्रेस का जो मतलब है यह होता है कि किसी का मतलब somebody lost his reputation। ठीक है, डिसग्रेस, ग्रेस मतलब समथिंग गुड, बट डिसग्रेस का मतलब होगा कि somebody lost his reputation by some crime or something. For the example, in disgrace we can use Ramesh committed a crime, so he disgraced by everyone or by the society, or he disgraced with the reputation। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये नहीं आएगा। कॉमेमोरेट किसी को याद करना, किसी की को याद रखना, वहां पे कहीं ना कहीं पे आएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट। यहाँ पे अगेन देयर इज एन वन वर्ड सॉल्यूशन आपको ढूंढना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल, द वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, अ पर्सन हु, जिसको बहुत सारी भाषाएं आती है। यहाँ पे एक लोग बस ध्यान रखना है, देखिए बहुत सारी, आपने ये तो सुना होगा कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, मोनो या पॉली, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मोनो मतलब हमेशा एक होता है, तो यहाँ पे बाय द सेम लॉजिक हम मोनोगोट काट सकते हैं, मोनोगैमी काट सकते हैं। अब यहाँ पे पॉलीगॉट और पॉलीगैमी में से आपको एक चूज, ग्लोट या एक चूज करना है। गैमी आपको पता है कि वन हु, पॉलीगैमी मतलब अ पर्सन हु मैरी वन, हु हैज अ 2 और 3 वाइफ, मोर देन 1 वाइफ, तो हम उसको पॉलीगैमी में लेंगे। तो यहाँ पे पॉलीग्लोट इज अ राइट आंसर फॉर दिस। ऑलवेज आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मतलब पॉलीग्लोट इज अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेज, मोनोग्लोट one who knows only one language, somebody who knows Hindi, English or a particular one language। monogamy मतलब person who has a single wife, polygamy मतलब more than one wife। now यहाँ पे आपको यूज करना है, यहाँ पे सिनोनिमस निकालना। सिनोनिमस मतलब समानार्थ, इन हिंदी इट मींस समानार्थक, मतलब अब सेंटेंस और अ वर्ड इट हैज अ सेम वैल्यू और मतलब सेम मीनिंग, नॉट वैल्यू, सेम मीनिंग। शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है माय ग्रैंडफादर resilience and positive outlook on life coupled with his sense of humor and undoubtedly contributed to his longevity और ओवरऑल हेल्थ। तो यहाँ पे रिसाइलेंस वर्ड यूज हुआ है। रिसाइलेंस वर्ड का मतलब होता है somebody who is strong, who can sustainable और can वो मतलब somebody who tolerate, मतलब कुछ जो बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर सके। एग्जाम्पल के लिए हम देते हैं कि that building is a very resilience कि it has nothing or not damage the build qualities in man। उस बिल्डिंग की बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसको इतने सारे डिसास्टर से भी कोई डैमेज नहीं हुआ। रिसाइलेंस का मतलब होता है कैपेसिटी टू वाइल्ड स्टैंड, मतलब बहुत टाइम तक खड़ी रह सके या फिर
टू रिकवर समथिंग, ठीक है, या फिर कोई चीज को वो रिकवर कर सके, रिसर्च मतलब somebody who can recover fast or recover in a very good manner, somebody who can recover, ठीक है, उसको रिसाइलेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो उसका जो राइट वर्ड है सिनोनिमस वो है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब होता है कंटिन्यूटी, अगेन द मीनिंग इज कंटिन्यूटी, उसको परसिस्टेंट कहेंगे। अगेन ये इन एजुकेशन ही आएगा, यू नो इन एजुकेशन मतलब समथिंग इज नॉट इनफ, क्वांटिटी और अमाउंट इज नॉट इनफ, उसको इनएडुकेट बोलेंगे, वहीं से वर्ड इनएडुकेट से बना है। डिपेंडेंस अगेन नहीं आएगा, डिपेंडेंस मतलब somebody rely on someone, ठीक है, डिपेंडेंस वहां पे नहीं आएगा। एंड वीकनेस, somebody who's a weak, somebody who's a tiny, or somebody who's not somebody who is not stronger is a weak or weakness, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आएगा। यहाँ पर सिनोनिमस निकाल रहा था, पर्सनस का मीनिंग हुआ। आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा नीचे, आप एक बार लिस्ट जरूर देख के जाइएगा, यू विल गेट एडवांटेज ऑफ इट। यहाँ पे सिनोनिमस निकालना है, सिनोनिमस वर्ड लिखना है असेट का। टू थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, दो चीजें होती है, द असेट and liabilities. Asset matlab something you have. Let me explain you with a very simple example. You have a saving bank account in your bank in some branch, ठीक है, that branch is there. उस branch में saving account में जो आपका पैसा है that will be your asset. या फिर आपका जो मकान है जो आपने खुद ने बनाया है वो आपका asset रहेगा, ठीक है। And if you taken some loan, वो आपके लाइबिलिटीज में आएगा। लाइबिलिटी से मतलब एक सिंपल मीनिंग होता है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट का मतलब कैपिटल से होगा। कैपिटल इज द अमाउंट विच यू इन्फ्यूज्ड इन द सम बिजनेस, ठीक है, किसी बिजनेस, जैसे कि फॉर द एग्जांपल इसकी आपने ना जो सिंपल आपने एक दुकान खोली, किसकी, आपने इसकी किराना की दुकान खोली, परचून की दुकान खोली या प्रोविजनल स्टोर खोली, उसमें जितना अमाउंट आपने लगाया वो आपका कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैपिटल इसका राइट आंसर है। ऑब्लिगेशन मतलब होता है समथिंग ओबिलाइज, आप पाबंद है, लाइक आई एम ऑब्लिगेटेड टू दिस, मतलब गवर्नमेंट व्हाट एवर ऑर्डर इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर ओबिलाइज टू दिस और वी नीड टू फॉलो, मतलब कंपल, ओबिलाइज का मतलब होगा कंपल्शन, ठीक है, नेसेसिटी, इन अदर वर्ड्स कंपल्शन इसका मतलब होगा। दैट का मतलब होता है ऋण या उधार, उधार होता है उधार, खैर इग्नोर माय हिंदी, उधार उसका मतलब होता है, तो ओब्लिगे वो इसमें डेट में आएगा। एंड अगेन लायबिलिटीज मतलब होता है जिम्मेदारियां और समथिंग यू हैव टेकन प्रीवियसली और नीड टू बी रिटर्न बैक और यू नीड टू पे बैक, वो आपका लायबिलिटीज में आएगा। तो ऐसे आपको अलग अलग मीनिंग समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एसेट का मतलब कैपिटल से होगा, उतना बहुत सिंपल है। अगेन यहाँ पे आपको एंटोनिमस ढूंढना है, विलोम शब्द या उसका जिसका डिफरेंट मीनिंग उस वर्ड से। यहाँ पे मीनिंग देख रखा है रेलेवेंस। इफ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, आप रेलेवेंस मतलब कैसे आप समझेंगे कि या आई एम वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस रेलेवेंट टू माय एसएनओ एग्जाम। रेलेवेंट मतलब समथिंग इज इंपॉर्टेंट और समथिंग इज रिलेटेड टू का मतलब रेलेवेंस होता है। नाउ हमें इसका अपोजिट ढूंढना है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इररेलेवेंट वर्ड इन्होंने यूज किया, रेलेवेंस मतलब यहाँ IR जो लग गया मतलब उसका ये विरोधी शब्द हो गया या अपोजिट शब्द हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया irrelevance, मतलब समथिंग इज नॉट रिलेटेड टू अस और समथिंग इज नॉट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद, ओके। यहाँ पे अब हम आगे देख लेते हैं, कनेक्शंस हो गया। कनेक्शन मतलब जॉइंट ऑफ टू थिंग्स, और तो यहाँ पे कनेक्शन का मतलब कनेक्शन यहाँ पे इसमें आ नहीं सकता, irrelevant यहाँ पे राइट है वो हो गया। इंपोर्टेंस यहाँ पे आ नहीं सकता बिकॉज इंपोर्टेंस मतलब होता है समथिंग हु इज वेरी नेसेसरी, हाँ, तो यहाँ पे आएगा नहीं। आगे की बात करते हैं। नाउ एज ऑफ नाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट डोमेन, नाउ कम टू